Hello and welcome everyone in lecture series of engineering chemistry. In the last lecture, I have discussed applications of molecular orbital theory with respect to homonuclear diatomic molecules, in which I have described the molecular orbital diagrams of H2 molecule, N2 molecule and O2 molecule of different categories, lighter or heavier. But in this part or in this video, I am going to describe the molecular orbital diagram of heteronuclear diatomic molecules. So let's start by taking an example of NO molecule. First part, number of electrons. We are following the same steps as we have discussed in homonuclear diatomic molecules. For NO molecules, if we are going to divide this NO into two parts, one is N, another is O. Number of electrons for N 7, number of electrons for O 8. That means total number of electrons are 7 plus 8, that is 15. On the basis of electronic configuration, we can write 1s2, 2s2, 2p3, and for oxygen 1s2, 2s2, 2p4. As we know, if there are number of electrons more than 14, then type of molecule is heavier. So it is a heavier molecule. Now we have to write down the configuration of NO molecule. As we know, it is a heavier molecule, so we have to follow the electronic configuration of heavier molecule as we have followed in oxygen molecule. So here I am going to start sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then sigma 2pz2, pi 2px2 is equal to pi 2py2. So if I am going to count all these electrons, then 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So one electron is still remaining. That remaining electron will move into pi star 2px orbital, and the other remaining orbitals will be vacant. So in this electronic configuration, I am not going to write the vacant orbitals. We have to write down the orbitals, those are containing electrons. So on the basis of this configuration, if we draw the molecular orbital diagram of NO molecule, so as we discussed earlier, it is the increasing order of energy, and this is the basic line. एक तरफ हम लिखेंगे N, एक तरफ हम लिखेंगे O. सेम पैटर्न फॉलो करना है जैसे हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फॉलो किया है. सेंटर में NO मॉलिक्यूल. सो फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज 1s ऑर्बिटल, then this is 2s orbital and the remaining 2p orbital. Same as for oxygen, 1s orbital, then 2s orbital and 2p orbital. तो यहाँ तक का पोर्शन एज इट इज है. केवल हमने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग पार्ट लिखे. जितने होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते थे उनमें दोनों एटम सिमिलर होते थे, तो दोनों तरफ हमें सिमिलर एटम लिखना होता था. बट यहाँ पर क्योंकि हमारे एटम्स अलग अलग हैं, इसलिए हमने अलग अलग एटम्स मेंशन किए. इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. नाइट्रोजन के लिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन के लिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन. ये फिलिंग हुई. अब इसके बाद हमें रिप्रेजेंट करने हैं NO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की. जब हम NO के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे तो पहला ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड होगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. This is sigma 1s, this is sigma star 1s,
same as for 2s orbital. This is bonding. Another one is anti-bonding orbital, sigma 2s, sigma star 2s. अब इसके बाद हैवियर मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन होता है तो pz की पोजीशन पहले आएगी, px py की पोजीशन बाद में आएगी. तो हम पहले ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल pz को और उसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे बाकी के दो ऑर्बिटल्स px और py को. बट ये पैटर्न केवल बॉन्डिंग में चेंज हुआ, यानी दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py. और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी, यानी कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py पहले आएगा और सबसे लास्ट में आने वाला ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार 2pz, यानी उसका एनर्जी लेवल सबसे हाई होगा. दिस इज सिग्मा स्टार 2pz. अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल 1s टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, जिसमें से 2 बॉन्डिंग में फिल हो गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल हो गए. नेक्स्ट के लिए भी सेम, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में. अब हमारे पास आते हैं p ऑर्बिटल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 यहाँ पर, 4 यहाँ, यानी 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन्स. इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है. तो फिलिंग के लिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले ऑर्बिटल में जाएगा, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन pz में, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगेन इन pz, क्योंकि जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव नहीं करेगा. देन थर्ड इलेक्ट्रॉन px में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन py में, फिफ्थ और सिक्स्थ पेयरिंग करेंगे. अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जब ये सब फिल हो गए, यहाँ कोई प्लेस वैकेंट नहीं है, तो वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग px ऑर्बिटल में, जैसा हमने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखा है. तो फिर से इसी बात को कहूंगी कि आप पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या आप पहले डायग्राम ड्रॉ करके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनके ऊपर स्टार नहीं है. तो 2 4 6 8 10. देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जहां पर स्टार है 2 4 और 1 5, यहाँ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2, दैट इज 2.5. ये बॉन्ड ऑर्डर आया. अब बॉन्ड ऑर्डर के बाद लास्ट पार्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक नेचर. मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करता है पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर. तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनको हमें देखना है. इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से अगर किसी भी ऑर्बिटल में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो दैट मीन्स वहां पर नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक. तो इस मॉलिक्यूल यानी NO में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसका नेचर कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक. लेकिन इस पैरामैग्नेटिक के साथ ही हमें क्या देना होगा, रीजन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इस प्रोसेस को फॉलो करके हम NO के साथ साथ CO मॉलिक्यूल का या CN मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं. तो आप प्रैक्टिस के लिए दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ करके देखेंगे. अगर हमें इनमें से किसी की आयनिक फॉर्म को ड्रॉ करना हो तो जैसे हमने होमोन्यूक्लियर में ड्रॉ किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम हेट्रोन्यूक्लियर में भी आयनिक फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं. किसी एक एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज जो भी हमसे पूछा जाएगा उसको मेंशन करके हमें केवल उसी पैटर्न को फॉलो करके डायग्राम ड्रॉ करना हो. अब इस हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाया जाता है. तो उसे एग्जाम्पल की फॉर्म में ले रही हूँ, विच इज HF मॉलिक्यूल. तो HF मॉलिक्यूल के डायग्राम के लिए हम प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे, यानी हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 10, यानी इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ लाइटर कैटेगरी। ठीक, देन हम HF को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन इज H, अनदर इज F। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिगरेट करेंगे 1s1 की फॉर्म में, और इधर 1s2, 2s2, 2p5 ये हुए। लेकिन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम अपने नॉर्मल पैटर्न से ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल 1 ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास 3 ऑर्बिटल हैं, 1s, 2s और 2p। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करने में जो एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स का बहुत बड़ा रोल है। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि ओवरलैपिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सिमिलर एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर सिमिलर एनर्जी नहीं है तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी लेवल हाई होता है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। क्यों हाई होता है? जैसे जैसे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो रिड्यूस होता जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का एनर्जी लेवल हाई है, दैट मीन्स फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, दैट मीन्स फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हाई होगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सपोज दिस इज द बेसिक लाइन, एक साइड H, एक साइड F। पहले फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर में HF। ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने के बाद हम इसके कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे। तो फ्लोरीन का पहला एटॉमिक ऑर्बिटल ये हुआ 1s, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये हुआ 2s, और ये तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको हमने नाम दिया 2p। तो इस 2p को थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ, 2px, 2py एंड 2pz। अब जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जैसा हमने यहां पर लिखा है, लेकिन जो 2p है उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास हो गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फिल्ड हैं किसके अंदर, फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के अंदर फिल्ड हैं। अब फ्लोरीन के इस p ऑर्बिटल के लिए जब हम हाइड्रोजन ऑर्बिटल को लेंगे जो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के आसपास होगा और उससे भी थोड़ा ज्यादा होगा। यानी यहां पर आया हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप के बेसिस पर पॉसिबल होती है। यानी ऑर्बिटल्स कब ओवरलैप करेंगे, जब उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर वो एनर्जी गैप इतना या इस रेंज का है या इससे कम है तब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, लेकिन अगर एनर्जी गैप इससे ज्यादा है तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस रेंज को HF मॉलिक्यूल के लिए ये 1s ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और ये pz ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, केवल ये 2 ऑर्बिटल्स फुलफिल करते हैं, यानी इनके बीच का एनर्जी गैप इस रेंज को फुलफिल करता है, जिसकी वजह से ये s ऑर्बिटल इस pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, ना तो 1s के साथ, ना 2s के साथ और ना ही px और py के साथ ओवरलैपिंग ये कर पाता है। तो जब ये 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बनने वाले ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, यानी इक्वल नंबर होगा। दैट मीन्स बनने वाले ऑर्बिटल्स भी 2 होंगे नंबर में, जिनमें से एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग होगा और दूसरा ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग, जिसका एनर्जी लेवल होगा इन दोनों के एनर्जी लेवल से हाई। यानी अब ये ऑर्बिटल्स इस तरीके से फॉर्म होंगे कि बनने वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इस 1s और pz से कम होगा और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल इस 1s और 2pz से ज्यादा होगा। इसको नाम क्या देंगे, नाम होगा सिग्मा sp ऑर्बिटल। यहाँ pz भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ हो गया सिग्मा स्टार sp ऑर्बिटल। अब यानी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर की फॉर्म में या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। केवल और केवल 2 ऑर्बिटल्स
ओवरलैप कर रहे हैं और यही दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। यानी अगर हम इस HF मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे मेंशन करेंगे, हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा sp2 और जो दूसरा ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार sp, ये ऑर्बिटल खाली होगा, यानी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हम केवल इतना लिखकर भी इसको छोड़ सकते हैं, हम इसको मेंशन ना करें। जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो होगा, Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही हैं हमारे पास केवल दो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1। और मैग्नेटिक नेचर कैसा आएगा, मैग्नेटिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो केवल दो इलेक्ट्रॉन हैं और वो दोनों कैसे हैं, पेयर, यानी डबल फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, इट इज अ डायमैग्नेटिक। रीजन मेंशन करना भूलेंगे नहीं, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूरा डायग्राम हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में मेंशन्ड है। तो ये हमारा HF मॉलिक्यूल का डायग्राम हुआ। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए HF के जैसे ही HCl को भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। HCl में Cl के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो हाइड्रोजन का S और Cl का 3pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो आई होप आपको ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्लियरली समझ में आए होंगे, जिसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स कराए, एक NO मॉलिक्यूल कराया है, एक HF मॉलिक्यूल कराया है, और आपको ये भी बताया कि आप इसी तरीके से इनकी आयनिक फॉर्म को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं हल्का सा हिंट आपको इस NO मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में दे रही हूँ जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जो NO मॉलिक्यूल है, अगर सपोज करो हमें NO की जगह NO माइनस ड्रॉ करना होता तो हम क्या करते, N या O इनमें से किसी एक के ऊपर माइनस चार्ज लगा देते। माइनस चार्ज होते ही यहाँ 8 की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते 9 और यहाँ 2p4 की जगह 2p5। तब जब हम डायग्राम ड्रॉ करते तो हमें यहाँ O की जगह क्या लिखना होता, हमें यहाँ लिखना होता O माइनस, और उस O माइनस के रेस्पेक्ट में यहाँ P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते, यानी P4 की जगह P5 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता और उस इलेक्ट्रॉन को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी फिल करते। तो आप एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, अगर किसी का कोई डाउट होता है रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन ड्राइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।